Praise be to God. प्रभु के नाम को महिमा मिले। Today we are going to meditate on a portion which is familiar to all of us. और आज जिस संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं वो हम सब के लिए पारिवारिक है। This portion is taken from Luke chapter 24 verses 13 to 27. और जिस गद्यांश के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 13 से 24वें वचन तक। I would request you to take your Bibles and read this portion. Don't be in a rush, but read very quietly so that God's Spirit will speak to you. और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ समय निकालें और इस पद को पढ़ें और किसी जल्दी में नहीं लेकिन आराम से इस वचन को पढ़ें। The Bible scholars have titled this small section as the road to Emmaus. और बाइबल के जो ज्ञाता हैं इस गद्य को वो कहते हैं कि इमाउस का मार्ग। I would like to add another phrase to it. I would like to say experiencing Jesus. और मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि यीशु को अनुभव करना। When you have read this particular portion, you will be able to understand that Jesus was walking along with two disciples on their road to Emmaus. और जब आप ये पद पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह उस मार्ग में अपने दो चेलों के साथ जाते हुए बात कर रहे थे। The disciples were very disturbed. और चेले बहुत परेशान थे। They were not happy. वो खुश नहीं थे। They were very concerned. वो बहुत चिंतित थे। They were thinking that this Jesus, the Messiah whom they worshipped, is going to save the nation of Israel from the clutches of the Roman Empire. और उनका ऐसा मानना था कि जो मसाया यीशु है ये रोमियो के राज से हमें आके छुड़ाएगा, इस देश को छुड़ाएगा। But nothing of what they thought came to fulfillment. लेकिन जो उन्होंने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। So on their way down to Emmaus, they were talking, how can all these things happen? What will happen for us? और इमाउस के मार्ग में जब वो उस मार्ग में जा रहे थे तो वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये सब कैसे होगा और कैसे पूरा होगा। Just imagine when they were walking to the city, they were so disturbed and somebody else is walking behind them. और कल्पना कीजिए कि वो रास्ते में जा रहे हैं, बहुत चिंतित हैं और पीछे से उनके पीछे कोई चल रहा है। And he is asking, what are you talking? और वो पूछ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? And they are saying, don't you know all that had happened in Jerusalem, all that had happened to Jesus? और क्या तुम नहीं जानते कि यरूशलेम में क्या हुआ, यीशु के साथ क्या हुआ? I want you to read specially Luke chapter 24 verse 27. और मैं खास तौर पे आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लूका की किताब उसका 24वां अध्याय उसका 16 वचन पढ़े, 27 वचन पढ़े। This is where you see the greatest Bible study ever in the world happen. और यहाँ देखिए कि सबसे बड़ा जो बाइबल का मध्ययन था यहाँ पर हुआ। You know who was conducting this Bible study? और आपको पता है कि कौन इस बाइबल अध्ययन को ले रहा था? It was Jesus himself was helping his disciples in this Bible study. और यीशु खुद अपने चेलों की यहाँ पर सहायता कर रहे थे बाइबल अध्ययन में। In verse 27 it says, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। I have been advised by one of the senior Christian leaders that whenever we meditate on God's word, be it Old Testament or any portion in the Old Testament or New Testament, it has to point towards Jesus. और मेरे जो एक बड़े एक शिक्षक थे, मसीह शिक्षक, उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि जब भी आप चाहे पुराने नियम में से पढ़ो चाहे नए नियम में से पढ़ो, वो हमेशा यीशु की तरफ ही उसका निशाना होना चाहिए। Here we see
Starting from Moses till all the prophets, Jesus was pointing them how it is talking about Jesus. और यहाँ हम देखते हैं कि मूसा से लेके सारे भविष्यद्वक्ताओं तक कैसे यीशु बता रहे हैं कि वो उन्हीं के बारे में और उन्हीं की ओर इशारा कर रही हैं सारी बातें। The first recommendation that I want to place before you, और पहली जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, whenever we read God's word, जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, let us build the capacity to see in any portion of the Bible, wherever we read the scriptures, can we see Jesus? और हम में ये काबिलियत होनी चाहिए कि हम कोई भी पद पढ़े बाइबल में से, क्या हम उस पद में यीशु को देख पा रहे हैं। I want to place before you 4 questions. और मैं आपके सामने 4 प्रश्न रखना चाहता हूँ। The first one is, पहला, what do we want to know when we study the Bible? क्या हम जानना चाहते हैं जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं। The second one is like this. और दूसरा इस प्रकार है, Whom do we want to know when we study the Bible? और किसको हम जानना चाहते हैं जब बाइबल अध्ययन करते हैं। The third question, तीसरा प्रश्न, what are we learning when we study the Bible? और क्या हम सीख रहे हैं जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं। The fourth question is, और चौथा प्रश्न, अंतिम प्रश्न ये है, do we have a single-minded clarity on what are we doing when we study the Bible? क्या हमारे पास एकाकी मन है और एक साफ दृष्टिकोण है कि हम किस प्रकार बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। Here in this particular portion, यहाँ इस गद्य में Jesus is telling us very clearly, और यीशु काफी साफ रीति पे बता रहे हैं, study the Bible concerning Jesus. बाइबल अध्ययन यीशु को ही मस्तिष्क में रख के करना चाहिए। That is the first lesson I want to give to you. और ये पहला पाठ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। In this particular portion, और इस गद्य में there is a second incident that I want to place before you. और दूसरा जो एक घटना यहाँ पर हुई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। This is from verse 32. और ये 32वें वचन से है। In this verse 32, it goes like this. और 32वां वचन इस प्रकार कहता है, And they said to one another, और उन्होंने आपस में कहा, Did not our heart burn within us और हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई, while he talked with us by the way and while he opened to us the scriptures? जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था। Let us look at this particular verse. Did not our heart burn within us? और इसी वचन पर ध्यान दीजिए खास तौर पे, क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, when we read the word of God, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, is our heart burning within us? क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न होती है। I think if we read the God's word in perspective under the Holy Spirit, our hearts have to burn. और अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन वचनों को पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में उत्तेजना उत्पन्न होती है। If our hearts are not burning when we read God's word, I think we have to be very careful. Something is not going right. अगर परमेश्वर का वचन पढ़ते वक्त हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमें काफी सावधान हो जाना चाहिए। Look at these two disciples. और इन 2 चेलों को देखिए, When they were listening to Jesus expounding from God's word, और जब वो यीशु को सुन रहे थे उस वचन पर, the experience that they are placing before us is, और वो ये अनुभव कर रहे थे, हमारे सामने ये बात रख रहे थे, our hearts were burning. और हमारे हृदय जो है उत्तेजित होनी चाहिए। Only if our heart starts burning when we read God's word, और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तभी हमारे हृदय उत्तेजित होते हैं। then there will be transformation in our lives. उसी के पश्चात हमारा जीवन बदलता है। Otherwise, we will be just reading God's word. उसके अलावा हम सिर्फ यूं ही प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं। We are not called to just read God's word. और हमें केवल परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए नहीं बुलाया गया है। We are called to journey beyond
and have a deeper experience with Jesus. और हमें उस यात्रा के पार जाना है और एक गहरा अनुभव होना चाहिए यीशु के साथ। That is why I have titled this message as Road to Emmaus, Experiencing Jesus. और इसीलिए मैंने इसका विषय ही यही रखा है कि इमाउस का मार्ग अनुभव यीशु को करना। The third aspect that I want to place before you is और तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ found in verse 30 and 31. और वो 30 और 31 वचन में है। Here we see another important aspect of what happens when God is with us. और यहाँ पे हम एक और मुख्य बात देखते हैं कि क्या होता है हमारे साथ जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। Kindly take your quiet time, read these two verses, and just I would request you to keep thinking what happens in my life. और अब आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपना शांत समय लीजिए और इस वचन को पढ़िए और अपने दिमाग में सोचिए कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। The verse goes like this, and it came to pass as he sat at meat with them, he took the bread and blessed it and brake and gave it to them. और इस प्रकार ये वचन कहता है, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। Can we go to verse 31? और 31 वचन इस प्रकार कहता Verse है, 31 says like this, इस प्रकार कहता है, and their eyes were opened, तब उनकी आंखें खुल गई and they knew him. और उन्होंने उसे पहचान लिया। When we take God's word and when we put it before him, when we break it, what happens in us? जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं, प्रभु के आगे रखते हैं और उसे तोड़ते हैं, हमारे साथ क्या होता है? Here for them the experience for these disciples were, और यहाँ क्या हुआ, इन चेलों का अनुभव क्या था? their eyes were opened और उनकी आंखें खुल गई and they recognized him. और वो उसे पहचानने लगे। Can God's word open our eyes क्या परमेश्वर का वचन हमारी आंखों को खोल रहा है and recognize him? और क्या हम उसे पहचान पा रहे हैं? God's word is meant to speak to our hearts. और परमेश्वर का वचन इसी मतलब से है कि वो हमारे हृदयों से बात करे। God's word is meant to speak to our soul. और परमेश्वर का वचन का यही कार्य कि हमारी आत्मा से बात करे। God's word is meant to read into our mind. और हमारे दिमाग से बात करे। God's word is for our spirit. और हमारी आत्मा के लिए है परमेश्वर का वचन। If we are able to approach God's word in those perspectives, अगर उसी दृष्टिकोण से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, our eyes will be opened. हमारी आंखें खुल जाएंगी You know, our hearts will be burning. और हमारा हृदय उत्तेजित होने लगेगा। Do we have that burning sensation when we read God's word? और क्या हमारे अंदर वो उत्तेजना होती है जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? Can our eyes be opened when we read God's word? क्या हमारी आंखें खुलती हैं जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, God's word is meant to transform our lives. अब परमेश्वर का वचन इसीलिए है ताकि हमारा जीवन बदले। This transformation is happening in our lives every day, every moment. और हमारे जीवन में हर एक क्षण, हर एक दिन ये बदलाव होना चाहिए। It does not stop anyway, anytime. और ये कभी भी नहीं रुकना चाहिए, किसी समय नहीं रुकना चाहिए। Till we breathe our last, और जब हमारी आखिरी सांस तक God's word continues to transform us. और परमेश्वर का वचन लगातार हमें बदलता रहना चाहिए। When we read God's word, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते our हैं, hearts have to burn. हमारे हृदय उत्तेजित होने चाहिए, Our eyes have to open, हमारी आंखें खुलनी चाहिए and we have to see him, और हमें उसे देखना चाहिए। and we have to experience Jesus. हमें यीशु को अनुभव होना चाहिए। Let me invite you to experience Jesus when you look into God's word. और आज मैं आपका इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि आप यीशु के वचन को जब पढ़े तो यीशु को अनुभव भी May करें the Lord bless you. और परमेश्वर आपको आशीष करे। Every time we open the word of God, और जब भी हम परमेश्वर के वचन को खोलते हैं, God's word has to touch our hearts, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को छूना चाहिए। and it is meant for transforming us. और ये इसीलिए है ताकि हम बदले। Let us look to the Lord in prayer. और परमेश्वर की ओर हम प्रार्थना में देखें। Our gracious and heavenly Father,
हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता each of the viewers who are listening to this word, और हर एक जो दर्शक इस वचन को सुन रहा है, Lord, we pray that touch their hearts, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके हृदय को छूइए, touch our soul, हमारी आत्मा को छूइए, touch our mind, हमारे प्रभु दिमाग को छूइए, touch our spirit, Lord. हमारी आत्मा को छूइए। We want to see you. हम आपको देखना चाहते हैं We want to see how you have loved us. और हम ये देखना चाहते हैं कि आपने हमसे कैसा प्रेम किया। Lord, we want to experience you हम आपको अनुभव करना चाहते हैं प्रभु, every day, every moment, हर एक दिन, हर एक क्षण, in new ways, Lord. नए तरीकों से प्रभु। We know we love you. हम जानते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, You know that you love us. आप जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। Lord, we want to come closer to you. प्रभु हम आपके और निकट आना चाहते हैं, Let your name be glorified. आपका नाम महिमा पाए Let your kingdom come और आपका राज्य आए, and let your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमेन Amen. आमेन।